Hello students and dear guardians, I am Vipul Mishra from OSN Academy of Commerce and Management. Today we are going to discuss basically management part of the commerce and management as well, because this part is common in both the streams. So if we talk about commerce part, it is given as business management in unit 6, and if we talk about management, so it is given in unit 1 as management, right? So this is the common part of commerce and management, and if you go through the previous year's question paper, so a lot of questions are there which are asked from business management unit, because business management is very important for both the streams, whether it is from commerce, whether it is from your management, right? So starting with this, what we have gone through a lot of aspects of management, like what is management, function of management, and managerial skills are there, levels of management. So this is okay with theoretical part, but if we talk about exam like NET, right, so these type of things are not asked. If you go through the question paper, you can see that a lot of questions are asked from historical development. Whenever we talk about the history of management, this is very important part for study, because there are so many questions which are asked from this section only, right? Because there are a lot of authors, there are a lot of statements, even there are a lot of years which are asked in examination. So if we talk about UGC NET examination, so it is very important to know the exact and clear-cut figure of historical development of management, right? So there are a lot of phenomena, there are a lot of concepts which have been developed by different authors. We know all that, we know about the scientific management, we have gone through the Hawthorne experiment, we know the bureaucratic management, but we don't have a knowledge to make a series or make a chronological order of history. Whenever we talk about the historical development, so historical development is a chronological activity, right? So starting with the very first, so the complete history of management is divided into 5 parts. So if we talk about first part, that is pre-classical era. So as we know, pre-classical era is divided into 5 distinct parts: agrarian system or domestic system, second is your handicraft system, then your guild system, then cottage system, and last is your industrial revolution. These 5 aspects constitute the pre-classical era of management. So first one, that is the domestic system. What is domestic system? Or domestic system and agrarian system are same or different, right? So when we go through the content of these, then we can be able to differentiate between these 2 aspects. Both the aspects are same. Either agrarian or domestic system is the system in which people basically used to agriculture as a main source of earning. Means if we talk about the prior to the industrial settlement, जब हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं हुआ करते थे, उस समय हमारे पास जो एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर ही हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था, राइट? जिसके पास जो भी ज़मीन है, जो भी खेती बाड़ी करके लोग अपनी अर्निंग्स करते थे. So that type of primitive system is known as agrarian system or the domestic system. But one more thing, not only agriculture, in addition to agriculture, some part of animal husbandry, जिसको हम पशुपालन बोलते हैं, उसको भी वो यूज़ करते थे. तो उससे उन्हें 2 फायदे होते थे. वन इज़ एडिशनल इनकम, सेकेंड इज़ असिस्टेंट टू द एग्रीकल्चर. जब हम पशुपालन कर रहे थे तो उससे क्या होता है, एक तो हमारे खेती में कुछ सहायता मिलती है, दूसरा है कि हम उससे कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इनकम कर लेते थे, राइट? सो फर्स्ट सिस्टम वाज योर डोमेस्टिक सिस्टम और एग्रेरियन सिस्टम. सेकंड इज योर हैंडीक्राफ्ट. सिंस वी नो द वर्क ऑफ एग्रीकल्चर इज सीजनल इन नेचर, और उसमें आइडल टाइम यानी खाली समय बहुत ज़्यादा होता है. तो जब भी खाली समय था लोगों के पास, उन्होंने सोचा
कि हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारी कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाए और कोई टैलेंट या स्किल हमारी डेवलप हो जाए, राइट? सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू दे हैव स्टार्टेड हैंडीक्राफ्ट सिस्टम. हैंडीक्राफ्ट वाज स्टार्टिंग ऑफ हैंडमेड प्रोडक्ट, राइट? कैसे उन्होंने हैंडमेड प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया? जब उनके पास खेती से आइडल टाइम होता था, वेन एवर दे वर फ्री, राइट? सो जब वो फ्री होते थे तो उस समय पे वो हैंडमेड प्रोडक्ट, आइदर बास्केट, आइदर सम ऑर्नामेंटल थिंग्स, राइट, मैट्स आर देयर, तो ऐसी ऐसी चीज़ें वो बना करके उनको फिर सेल आउट करते थे. तो इस चीज़ को हम बोलते थे हैंडीक्राफ्ट सिस्टम, राइट? थर्ड इज योर गिल्ड सिस्टम. गिल्ड बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है. जब भी आप देखेंगे पुराने क्वेश्चन पेपर्स, उसमें आपको मिलेगा व्हाट इज गिल्ड, राइट? गिल्ड इज द पार्ट ऑफ प्री क्लासिकल अप्रोचेस ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट. गिल्ड होता क्या है कि हमारे पास जब बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने वाले लोगों के ग्रुप होते हैं, फिर हम उनको सेग्रीगेट कर देते हैं. सेग्रीगेट इज मतलब ग्रुपिंग कर देते हैं. सेम टाइप के प्रोडक्ट बनाने वाले लोगों का जो समूह था उसको हम गिल्ड बोलते हैं. अगर हमें एक लाइन में बताना हो व्हाट इज गिल्ड, सो इट इज़ द एसोसिएशन ऑफ पीपल प्रोड्यूसिंग सेम हैंडीक्राफ्ट. उनमें से जो लोग एक जैसा प्रोडक्ट बना रहे थे, हैंडमेड प्रोडक्ट बना रहे थे, उन लोगों के समूह को, ग्रुप को हमने कहा गिल्ड, राइट? सो इससे क्या होगा? इससे दो फायदे होंगे. जब एक जैसा प्रोडक्ट बनाने वाले लोग एक साथ बैठेंगे तो कहीं ना कहीं उनका स्किल डेवलपमेंट होगा, उनकी नॉलेज शेयरिंग होगी और इस तरह से वो हैंडमेड प्रोडक्ट बना करके अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं. तो तीन चीज़ें आई आपकी. फर्स्ट वन योर डोमेस्टिक सिस्टम, सेकेंड इज योर handicraft, and third is your guild. Then fourth is your cottage. Cottage क्या है? Cottage is the extension of guild, right? Guild को और हमने एक्सटेंड किया. कॉटेज के केस में लोगों की संख्या और बढ़ गई. गिल्ड में लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल होता था जो कि एक तरीके के प्रोडक्ट को बना रहे थे. कॉटेज में कंपैरेटिवली थोड़े ज़्यादा लोग आए और उन्होंने प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो स्टार्ट करी. प्रॉब्लम एक थी, सिंस प्रोडक्ट वर हैंडमेड सो इट वाज एक्सपेंसिव इन नेचर. जब भी कोई चीज़ हैंडमेड होती है तो नंबर ऑफ यूनिट हम कम प्रोड्यूस करवाते हैं. दैट्स वाई द प्राइजेस ऑफ प्रोडक्ट वर इंक्रीज्ड. दैट वाज द बेसिक प्रॉब्लम. तो इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन किया. मींस इन टर्म्स ऑफ यूनिट उन्होंने ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू किया. सेकंड, उन्हीं में से कुछ लोग मार्केटिंग में आए रादर देन प्रोड्यूसिंग. सम पर्सन इन्वॉल्व इन द मार्केटिंग एंड सेलिंग टाइप ऑफ थिंग्स, राइट? तो उससे उस सिस्टम को हमने बोला कॉटेज सिस्टम. एंड लास्ट इज योर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था? इट वॉज ऑटोमेशन ऑफ द इंडस्ट्री. When machines were brought in the system for the large scale production, then it is known as industrial revolution. तो industrial revolution है basically क्या कि जो काम पहले मैनुअली कर रहे थे, हम हैंडमेड प्रोडक्ट बना रहे थे, उसी चीज़ को अब हम मशीनों से बनाएंगे. तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोल रहे हैं? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कौन से की फीचर्स थे? आपका लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा था और लार्ज स्केल प्रोडक्शन की वजह से पर यूनिट की कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जा रही थी. सो जो प्राइस मैकेनिज्म को लेके जो आपकी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई थी. बट वन ऑफ द ग्रेट ड्रॉबैक ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दैट इज द ग्रेट डिप्रेशन. What was the Great Depression? Great Depression was the outcome of Industrial Revolution. When large scale people have lost their jobs due to automation of the industry. जब machines brought in हो गई तो फिर हमारा लेबर जो है वो फेज आउट हो गया. मीन्स रिप्लेस कर दिया गया किससे? मशीन से. सो वो कंडीशन जब बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में बहुत ज़्यादा लोगों ने अपनी जॉब्स को खो दिया, दैट कंडीशन इज नोन एज ग्रेट डिप्रेशन. सो इट वॉज द हिस्ट्री ऑफ योर प्री क्लासिकल एरा. इसके बाद में आपकी क्लासिकल अप्रोचेस आती हैं. क्लासिकल में थ्री आइडेंटिकल टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर देयर. उसके बाद में आपका नियो क्लासिकल आएगा. नियो क्लासिकल जो कि बिहेवियरल अप्रोच है, उसमें आपका हॉर्थन एक्सपेरिमेंट, मैस्लो थ्योरी एंड थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई ऑफ मैकग्रेगर आएगा. देन मॉडर्न अप्रोच है जिसमें कंटिजेंसी सिस्टम अप्रोच और भी बहुत सारे एस्पेक्ट उसमें आएंगे. सो द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस विल बी टेकन बाय मी इन द नेक्स्ट क्लास. इफ यू वांट टू नो about
more and more subject matter you want to connect with us, so go through next videos please. Thank you.